फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आईएएस यूपीएससी रैंक 1 दुनिया का सपना होता है जो आपने अचीव कर लिया है। With All India Rank 1 Anuj Agnihotri for over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. आपने यूपीएससी इसलिए चूज किया सिर्फ और सिर्फ कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, डायनेमिक है, या उसमें थोड़ा सा पार्ट ये भी था कि यू जस्ट गॉट फेड अप ऑफ एमबीबीएस? नहीं, ये वाला पार्ट मुझे बॉदर नहीं करता था बिकॉज एट दैट टाइम यू मस्ट बी लाइक ओवर द मून, एम्स में एडमिशन हो गया। इट वॉज द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ. एम्स जोधपुर, माई कॉलेज, माई अल्मा मैटर वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी. बट दोनों चीज़ों को मैनेज करना एक साथ, तो उसकी प्रेप भी बहुत हैवी है, एमबीबीएस करिकुलम भी बहुत हैवी होगा, एग्जाम बहुत हैवी होगा, so उसको कैसे मैनेज किया? तो उसमें मैं फिगर आउट करता था कि यार ये टॉपिक दोनों में पूछे जा रहे हैं, तो इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ लेता हूँ. जब आपने पहली बार एग्जाम दिया यूपीएससी का, बट जब रिजल्ट नहीं आया तो कैसा लगा? जब तक कमियां दिख रही हैं क्लियरली तब तो होपलेस होने की कोई बात ही नहीं है. फिर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कमियों पर वर्क करो. ऐसी क्या टेक्निक है आपकी पढ़ने की जो आई थिंक आपको कि आपने सीक्रेटली पढ़ते पढ़ते बना ली, सोच ली, जिससे हमारे बाकी एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके? हे गाइस, वेलकम टू द नचिकेत भाटिया शो, नाउ स्पॉन्सर्ड बाय Qrenza, powering India's healthcare hiring. Now find your dream medical job at Qrenza.com. So guys, you can see that I have a very weird hairline now, and you are going to see that for a couple of podcasts. Yes, I have got a hair transplant done, so no secrets with you. Today we have a very special guest. He is the All India Rank 1 of the UPSC Civil Services 2025 and one of the only AIMS doctors to have topped this exam with medical sciences as an optional in the last 14 years. A 26-year-old dynamic MBBS graduate from AIMS Jodhpur, he grew up in a very small town called Rawatbhatta in Chittorgarh, Rajasthan, before moving to Kota for senior secondary and then cracked AIMS with an All India rank of 215. After completing his internship in January 2023, he made the unconventional decision to walk away from clinical medicine and chase the dream of civil services. His journey was anything but linear. He cleared DENX in his very first attempt, yet failed in his second attempt, and in the third one, he cracked UPSC with rank 1. Without any kind of main coaching, with 13 hours of daily self-study and near monastic withdrawal from social life, he turned the setback into rank 1. And trust me, when you watch this podcast, you are going to feel goosebumps. A man with an amazing smile and amazing insight, and yes, tips and tricks to crack UPSC in the very first attempt. Let's put our hands together and let's welcome Dr. Anuj Agnihotri. Welcome Dr. Anuj to the Nachiket Bhatia show. Thank you so much for having me, and it's my absolute pleasure to be here. First of all, congratulations, IAS UPSC रैंक 1 दुनिया का सपना होता है जो आपने अचीव कर लिया है. Thank you so much. So बहुत बहुत मुबारक हो आपको उसके लिए. So अनुज, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी इनिशियल जर्नी कैसी थी? I mean, what was your childhood like? When did you decide कि you should become a doctor? And what was the family like? Childhood was pretty simple. I would say कि बहुत I come from a very small town और बहुत छोटे छोटे एस्पिरेशंस वहाँ पे होते हैं. ऑल्दो मतलब एस्पिरेशंस इन द सेंस छोटे कि बहुत ऐसे लिमिटेड वो स्कोप दिखता है कि हाँ भाई बनना है इंजीनियर या डॉक्टर. आपको वैसा कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आप इमेजिन नहीं करते हो कि आई कैन बी क्रिकेटर समडे और ऐसा कुछ नहीं. बट यस, एक वो इग्निशन रहता है अंदर कि हाँ आई नीड टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू बी एट सर्टेन प्लेस समवेयर लेटर इन माई फ्यूचर. But apart from it, it was good. My parents were always supportive in whatever endeavors I wanted to take. इसके अलावा दोस्तों का हमेशा साथ रहा. और यूपीएससी से पहले मेडिसिन और उससे पहले बायोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशंस, ऑल ऑफ इट वाज वेरी ग्रेजुअल. और मतलब largely it was driven by my interest towards whichever field I took. So you did your MBBS from AIMS Jodhpur. Yeah, I did. उस टाइम भी क्या रैंक आई थी आपकी? It was 215. At that time, NEET और AIMS का दोनों का अलग होता था. तो I scored, I guess, 215 in AIMS.
And at that time you must be like over the moon, एम्स में एडमिशन हो गया. नॉट एग्जैक्टली क्योंकि मतलब जिस तरह से यूपीएससी में सबका सपना होता है ना आईएएस बनने का, तो उसी तरह एम्स में भी सबका सपना होता है एम्स दिल्ली लेने का. तो आई वेरी विविडली रिमेंबर कि जो मेरा रिजल्ट का दिन था, तो पूरा दिन मैं चेक करता रहा कि आज रिजल्ट आएगा, नहीं आया. और वो अगले दिन सुबह 4 बजे आया और मैं वेट कर रहा था कि मतलब टॉप 50 होता है एम्स दिल्ली का. तो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इनटू इट, बट फिर इट वाज द बेस्ट ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि एम्स जोधपुर गेव मी एवरीथिंग दैट आई कुड ड्रीम्ड ऑफ, आई कुड ड्रीम ऑफ. कैसे थे वहाँ के दिन? इट वाज फैबुलस. मतलब एम्स जोधपुर पर जितनी बात करना चाहे मैं आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि इट वाज द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ. एम्स जोधपुर, माई कॉलेज, माई अल्मा मैटर वाज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी. क्या था सबसे अच्छा? The people there, the faculty, the staff, my seniors, juniors, my batchmates, all of them. मतलब I literally used to say this to my family, to my friends each single day that we are living in heaven. हर दिन मैं कहता था कि जन्नत में रह रहे हैं भाई, इससे अच्छा और बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है. तो that was एम्स जोधपुर. क्यों थी जन्नत? मतलब आप जब कुछ ऐसी जगह होते हो ना कि जहाँ आप हर टाइम हर मोमेंट पर एंजॉय कर रहे हो, आप दोस्तों के साथ बैठे हो उसमें आप एंजॉय कर रहे हो, आप खेल रहे हो उसमें एंजॉय कर रहे हो, फेस्ट एंजॉय कर रहे हो, क्लासेस एंजॉय कर रहे हो. जब आप मतलब एज बोरिंग थिंग एज क्लास, तो अगर वहाँ पे अगर आप एंजॉय कर पा रहे हो तो फिर उससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए. तो वही एग्जैक्टली हेवन बनाता है एम्स जोधपुर. You know, I'll go a little bit back here. You come from a very small town, Rawatbhata, right? It used to be around the nuclear power plant. Yes, yes, Your father was working at the nuclear power plant. right. At that time, you know, जब आपका घर पूरा लाइक टेक्नोलॉजी के अराउंड है, न्यूक्लियर पावर के अराउंड है, एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी अ स्टूडियस गाय फ्रॉम इनिशियल इटसेल्फ. एम्स में होना आसान नहीं, यूपीएस से होना आसान नहीं. उसके बावजूद हाउ डिड यू गेट इनटू इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड ऑफ मेडिसिन कि मुझे डॉक्टर बनना है? अच्छा, इसका मैं एक वो देता हूँ, एक बहुत स्टीरियोटिपिकल सा आंसर ऐसे स्टार्ट करने का बताता हूँ. क्योंकि मेरा बड़ा भाई है, ही इज इंजीनियर. तो एक बहुत ऐसा कन्वेंशनल सा होता है कि घर में एक इंजीनियर है तो छोटा बेटा डॉक्टर बन जाएगा. तो इट स्टार्टेड दैट वे, बट प्राइमरीली इट वाज ड्यू टू माय इंक्लिनेशन एंड माय इंटरेस्ट इन बायोलॉजी. इट वाज सम टाइम इन 8th or 9th that I developed this interest and curiosity in biology that motivated me to take biology and PCB in 11th and 12th, and the logical next step was to fight for medical entrance exam, and that way I went to medical college. You went to Kota for 11th 12th. Yeah, I prepared from there. तो लाइक क्यों गई कोटा वैसे? Kota again is Rawatbhata is very proximity to Kota. तो एक चीज़ वहाँ पे रहती थी कि एट दैट टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और मोर सो बिकॉज मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है. देयर वाज नो वन टू गाइड मी अबाउट दिस एंट्रेंस एग्जाम. तो ये रहता था कि एक फोमो भी फैक्टर रहता है कि अगर आपको प्रिपेयर करना है एंड एक्चुअली यू वांट टू गेट सक्सेस, तो आपको कोटा जाना पड़ेगा. तो एट दैट टाइम इट यूज्ड टू बी अ थिंग. तो इसलिए सिंपली कोटा गया था. मेरा भाई भी एंट्रेंस के लिए कोटा गया था, तो आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोटा ओनली. I've heard there's a lot of pressure in Kota because you know everybody, you can see loads of people just studying for engineering or medical. उससे pressure 10 गुना बढ़ जाता है. सच है ऐसी बात? कुछ हद तक सच है, क्योंकि एक तो sheer number of people who are preparing with you, तो you get to see your competition around yourself इन एवरी मोमेंट. आप मैस में जा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको अपना कंपटीशन आसपास दिख रहा है, और वो कंपटीशन पढ़ाई कर रहा होता है. तो आपको कंटिन्यूस वो प्रेशर बैक ऑफ द माइंड में फील होता रहता है कि यार मुझसे आगे कोई निकल रहा है, तो मुझे और ज़्यादा आई नीड टू प्रिपेयर अ नॉच अबव. तो वो चीज़ रहती है कोटा में. देयर आर सर्टेन कॉन्स ऑफ लिविंग इन अ प्लेस लाइक कोटा, बट फिर मैं इसको एक अलग परसेप्शन से देखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोटा वर्कड फॉर मी एंड इट गेव मी द परफेक्ट एनवायरनमेंट दैट आई नीडेड, एंड इट kind of synced with my strategy of fighting a competitive exam also. So that way Kota worked for me. So will you suggest youngsters कि उनको आगे जाकर 11वीं 12वीं में कोटा जाना चाहिए पढ़ने के लिए? अब तो since a decade after I went to Kota in 2015 and almost a decade has passed now, अब मैं ऐसे seriously suggest तो नहीं करूँगा, क्योंकि a lot of resources that you need to prepare for an entrance exam are available at your doorstep also. आज ऑनलाइन इतना कुछ प्रिपेयर कर सकते हो आप, इतना सब कुछ कंटेंट मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा ये प्लेटफॉर्म्स भी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं. मतलब इनफैक्ट जो कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे थे वो भी सब ऑनलाइन आ गए हैं. तो अब तो काफ़ी हद तक तैयारी हो सकती है घर पे रहकर. तो मुझे लगता है कि करा जा सकता है घर पे. अब नॉट नेसेसरीली टू गो टू कोटा. मैंने सुना है वो जो इतनी सुसाइड की कहानियाँ आती है वो भी सच होती है कोटा की? It is a grim reality, and I would say that even in my time also
there were some 15 or 20 suicide cases that I heard of. So it is an unfortunate reality of Kota. And more so because of the tender age in which the people go there. अगर कोई बच्चा मतलब people from I mean I have seen people जो कि 11-12 साल में कोटा आ जाते हैं and they start preparing for competitive exam. मतलब इतनी जल्दी आप एक्चुअली में देने वाले हो 16-17 की एज में, और जब आप 11-12 साल से एक एग्जाम के पीछे पढ़ रहे हो, जब आपको मतलब बाहर की दुनिया से एकदम कट ऑफ हो जाते हो और इतना ज़्यादा प्रेशर आप फील कर रहे हो, तो अनफॉर्चुनेट है कि कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं. और फिर सरकार नीट यूजी कैंसिल कर दी थी. हाँ, तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स एक्चुअली मतलब कंपाउंड दीज सफरिंग ऑफ पीपल. एंड अभी रिसेंटली भी जो नीट यूजी कैंसिल हुआ, तो दैट इज अनफॉर्चुनेट. There's a student who actually took the path of suicide. आज ही उसकी मैंने खबर देखी थी. It's a sad reality sometimes, na? Yeah, it is very sad. I mean, and unfortunately, it is more common with the medical entrance examination. In my time also, I guess 2015 exam and 2016 also happened twice. So I was fortunate enough that हमारे time में एक ही बार में हो गया था, but it is sad that and more so from an administrative point of view, because now I am into administration, I think that it is the one factor which is responsible for it is the sheer number of people who give medical entrance. Around 24-25 lakh people give, so there are a lot of lacunas in the this entire chain of conducting examination. But then I believe that necessary steps and due diligence has to be in place, because a lot of futures and a lot of careers do depend on these exams. Very true. Doctors and paramedical associates. So this tool is a blessing in disguise for all healthcare professionals. Are you still confused how much your salary should be? Curenza has created a very interesting tool in which you can feed your experience, your age, your region, and the tool shall tell you what should be your apt salary. We have collected data from all across country by talking to different ages of professionals, and we have got the most precise data in the country to decide your salary. It's superb. Go and try it now. It's simply available at curenza.com. Yes, powering India's healthcare hiring. AIMS की बात करते हैं. बिल्कुल. Tell me some funny story about AIMS. हाँ, बहुत सारी हैं. अब इसमें ऐसा ढूंढूं अगर मैं, तो चलो मैं एक बताता हूँ. वैसे मतलब यूजुअली जो कॉलेज के बच्चे होते हैं उन्हें ये रहता है कि अगर कोई वाइवा वगैरह हुआ है, थियोरेटिकल पेपर्स में तो यूजुअली फेल हो जाते हैं बच्चे, वाइवा वगैरह में ये रहता है होप कि पास हो जाएंगे, थोड़ा सा इंटरनल वाले हेल्प कर देंगे. तो यूजुअली हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे 200 नंबर के. अब उसमें 101 इज़ द पासिंग मार्क. तो एक हमारा मेडिसिन का प्रैक्टिकल हो रहा था फाइनल ईयर और द पेनल्टीमेट ईयर, आई डोंट रिमेंबर. तो वो 228 मार्क्स का था. अब उसमें पासिंग मार्क्स थे 115, पर मेरे एक दोस्त के आए 101. तो हम सैड हो गए कि यार वापस फेल हो, और वो एक्चुअल में फेल हो, उसके सप्ली में आए थे वापस 101, वो उसमें भी फेल हो गया. तो वो परेशान नहीं हुआ, वो फटाफट अपने फॉर्मल्स डाले और सीधे मेडिसिन के एचओडी के रूम पे चला गया. और वहाँ जाके बोलता है, सर आई नो आपने मेरे लिए बहुत हेल्प करने की कोशिश करी, आपने मुझे पास कराने की कोशिश करी, बट आपसे वो कैलकुलेशन एरर हो गया थोड़ा सा. आप मुझे 115 देना चाह रहे थे, 101 दे दी. तो मतलब हम पूरे टाइम हंस रहे थे कि मतलब ऑडेसिटी टू क्वेश्चन मेडिसिन के एचओडी की, सर आपने पास गलत करा दी. तो इस तरह से मतलब बहुत चाटे बजे बिल्कुल. उसको तो रिकॉर्ड करना चाहिए था. तू जा रहा है, इसको रिकॉर्डिंग कर ले. उसने कुछ भी नहीं सोचा कि टीचर्स ने एक्चुअली दे वांटेड मी टू पास, तो उन्होंने नंबर तो दिए बट वो भूल गए कि 115 थे पासिंग. So कब पास हुआ फाइनली? वो शायद 1 साल ऊपर लगा था. He's a good guy. In your college days, which was the one professor who actually helped you shape your mentality, boost your confidence? There were many. अच्छा, सबसे पहले तो डायरेक्टर सर का ही बोलना चाहिए, क्योंकि he was the one person who is, मतलब अगर सबसे बड़ा क्रेडिट अगर एम्स जोधपुर एज एन इंस्टीट्यूशन किसी को देना चाहिए तो it surely goes to डायरेक्टर सर. तो he contributed a lot to it. अपार्ट फ्रॉम इट अगर पर्सनल इंटरेक्शन वाइज देखें तो अच्छा, एक मैं इंसिडेंट सुनाता हूँ. एक हमारे सर्जरी के एचओडी थे अशोक पुराणिक सर. तो उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन मेरा उनसे रहता था. तो मतलब एक बार तो वाइवा का भी मुझे याद है कि वाइवा मेरा हो रहा था, सर्जरी का वाइवा, और मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं था.
तो सर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ ऐसे हर्नियोग्राफी एंड ऑल, तो मैं बोला सर मुझे पता नहीं है। तो सर वॉज वेरी स्माइलिंग कि कोई बात नहीं, अच्छा है। तो सर ने पूछा कि बेली पढ़ते हो, तो मैं बोला सर पढ़ता हूँ बट अभी याद नहीं है। तो उन्होंने अरे और अच्छा, तुम बहुत अच्छे सर्जन बनोगे। तो अभी कुछ याद नहीं है। फिर उनने पूछा था कि अच्छा अभी क्या इंटरेस्ट है, तो मैं बोला सर थोड़ा सोच रहा हूँ कि यूपीएससी की तरफ जाने का। तो ही एनकरेज मी अ लॉट। उन्होंने बोला कि कभी भी ऐसे मन करे, आई एम ऑल्सो इनटू करंट अफेयर्स एंड ऑल, यू वांट टू डिस्कस समथिंग, आओ मेरे चैम्बर में आराम से कभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, फ्रॉम अ पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो ही टॉट मी अ वेरी गुड थिंग। मैं जब इंटर्नशिप में था तब हमारे राउंड्स चल रहे थे, और यूजुअली ऐसा होता, एक तो ये पैराडॉक्स भी है, मतलब आयरनी है कि जब इंटर्न या फिर जेआर पेशेंट से राउंड लेगा, वो मतलब इतने ज़्यादा खुल के बताते नहीं है, वो हाँ हाँ ठीक है सर बता देते हैं। जैसे ही कंसल्टेंट आएगा उनकी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आ जाती हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही अब एचओडी सर आए, वहाँ पे राउंड पे सब लोग चल रहे थे, अब अटेंडेंट एकदम से बीच में बोलने लगा, तो पीजी ने ऐसे थोड़ा सा हश कर दिया कि मतलब शांत हो जाओ अभी बोलने। तो सर को थोड़ा सा वो लगा कि भाई अटेंडेंट को आपको सबसे पहले अटेंड करना ज़रूरी है। तो उसमें सर सेड अ लाइन वेरी दैट रेजोनेट्स टिल डेट, एंड इट इज़ वेरी मतलब इट कैन बी अप्लाइड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। सो ही सेड दैट इफ यू वांट टू बी अ गुड डॉक्टर, be altruistic. If you cannot be altruistic, be empathetic. And if you cannot be empathetic, at least be sympathetic. And if you cannot be sympathetic, then don't be a doctor. So this is something that Very resonates. nice. हाँ, very nice. तो मतलब that way मतलब बहुत अच्छी फैकल्टीज है, मतलब एंड वेरी मतलब एक फैकल्टी स्टूडेंट का एक गैप रहता है कि आप इतनी आसानी से इंटरेक्ट नहीं करते हो, दैट इज देयर। बट इन आवर कॉलेज इट यूज्ड टू बी वेरी फ्रेंडली वाइब्स। मतलब मेरे डर्मेटोलॉजी के एचओडी रहते थे, मतलब यू यूज्ड टू कॉल मी नेताजी। अब इतना फ्रैंकली सर बात करते थे, और मतलब वेरी फ्रेंडली मैनर। अब आराम से पीजीज वगैरह डरते थे, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत प्यार से रखते थे, तो ऐसा अच्छा था। और ऐसी क्या यादें हैं जो आप शायद अब आगे अपनी यूपीएससी की लाइफ में लेके जाओगे? तो यादें कह लो, लर्निंग्स कह लो। लर्निंग्स मैं एक और कहूँगा कि इंटर्नशिप के टाइम से मैं अगर ड्रॉ करूँ, तो यूजुअली मुझसे लोग पूछते थे कि यार तू जैसे, मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने, कि मतलब एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि यू फोरगो समथिंग एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स, कि आपके दोस्त डॉक्टर्स बन जाएंगे, काफ़ी अच्छा कुछ कर रहे होंगे, आप अभी भी वो किताबें पढ़ रहे हो। बट मैं उन्हें कहता था कि यू डोंट नो वॉट इज़ द लाइफ ऑफ ए पीजी। मतलब इतनी हेक्टिक लाइफ और मुझे नहीं लगता और किसी प्रोफेशन में होती है। द लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ईयर पीजी, द जूनियर रेसिडेंट, मतलब इट इज़ अनइमेजिनेबल। जितना ज़्यादा वर्कलोड उन पर होता है, आई हैव सीन इट थ्रू माई आईज। मतलब इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं वो लोग, मतलब आपके पास लेजर के कोई टाइम नहीं है। योर पर्सनल लाइफ गेट सेक्रीफाइस्ड, योर पर्सनल हेल्थ गेट सेक्रीफाइस्ड, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग। मतलब इतना वर्कलोड, और बहुत डिलीजेंटली करते हैं, स्टिल दे कीप देयर स्माइल ऑन देयर फेस। मतलब इट इज़ समथिंग टू बी लर्न। एंड ये चीज़ हम और प्रोफेशंस में और फील्ड में अप्लाई करने की ज़रूरत है। हम बहुत जल्दी थक जाते हैं कि यार ये क्या क्या, ये तो मेरा काम भी नहीं है, फिर मैं क्यों करूँ। बट फिर वही, मतलब a first year junior resident can teach you a lot of things that you need to apply in your life in whichever field you are working. कब लगना शुरू हुआ that you can, you know, pivot toward UPSC? I'm sure it is not a single day decision. It's a Very थोड़ा gradual phase process. लगता है. So when what was the first moment you thought कि नहीं यार I can think about UPSC now? मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया था मेरा, मतलब इंटरेस्ट था करंट अफेयर्स एंड ऑल। मैं थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज़ में, मतलब मेरा मन करता था कि मैं सोशियोलॉजी पढूं, मैं हिस्ट्री पढूं, इन सब चीज़ों का। तो दैट इंटरेस्ट पार्ट वाज देयर। बट एक ऐसे करियर स्विच, मतलब ये डिसीजन, दिस वाज बिग, एंड आई डिसाइडेड इट कि एक तो पर्सनैलिटी इंक्लिनेशन देख के कि I loved something that was very dynamic and diversity, and civil services offers it more than anything else. Apart from it, it was, I would say, helplessness. आप जब अपने आप को एक ऐसी सेटिंग में ढूंढते हो जहाँ पे आपके पूरे आसपास हेल्पलेसनेस है, एक पेशेंट को जब वो मतलब he gets so desperate, तब वहाँ पे आप हेल्पलेसनेस फील करते हो कि you are limited by the constraints of resources, that you are not able to do what you actually can. तो वहाँ पे ऐसा कभी फील हुआ कि यार अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ तो आई कैन डू थिंग्स समवॉट डिफरेंट, जो कि मतलब दूसरा तरह का इम्पैक्ट ला सकते हैं। नॉट डिस्काउंटिंग द फैक्ट दैट जो डॉक्टर इम्पैक्ट क्रिएट करता है, दैट इज ऑल्सो ह्यूज। आई मीन अगर किसी की जान कोई बचा रहा है तो उससे बड़ा तो कोई इम्पैक्ट हो ही नहीं सकता। बट देन द इम्पैक्ट दैट सिविल सर्विसेज डज इज समवॉट वेरी डिफरेंट। अगर मतलब इसको हम उससे समझें ना, कम्युनिटी मेडिसिन में हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशंस, तो उसमें अगर हम डॉक्टर की बात करें तो सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन, इस पर अब क्यूरेटिव मेडिसिन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बट अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जाएँ तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन पर हम काफ़ी फोकस कर सकते हैं, जिससे कि रिस्क फैक्टर डेवलप ना हो, जिससे कि अगर रिस्क फैक्टर डेवलप हो गए तो उसी स्टेज पर हम उन्हें कंट्रोल करें।
तो ये चीज़, अब जैसे उसका एग्जांपल लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर इज अ बिग इशू, तो अगर कोई डॉक्टर सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट करने पर फोकस कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो HPV वैक्सीन इसको मेन स्ट्रीम करें। तो इस तरह से काफ़ी मतलब अच्छा हम काम कर सकते हैं। वेरी ट्रू। आई थिंक अगर देश के अपकमिंग IAS ये सोचेंगे तभी शायद आगे जाके 10 साल बाद कुछ हो पाएगा। एंड वी नीड मोर पीपल लाइक यू टू थिंक अबाउट हाउ वी कैन मेक द कंट्री बेटर थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स। राइट। बिकॉज ये कहना बहुत आसान होता है सड़क साफ रखो, एडमिशन कर रहा है, बट भाई डस्टबिन रखने भी तो जरूरी है। राइट। वरना लोग कहाँ फेंकेंगे सामान? बिल्कुल। वही चल रहा है। बिल्कुल। तो जिस दिन आपने सोचा, आई एम श्योर, कितना टाइम लगा आपको सोचने में, ये डिसीजन लेने में? It was around a year or so. It took time. एंड ओवर द टाइम आप एक बार सोच लेते हो कि चलो इस साइड स्विच करना है, फिर उसके बाद आप सोचते हो, कंटेम्पलेट करते हो कि किस तरह से स्विच करना है, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू रेफर टू, किस तरह का एग्जाम है। आप UPSC के बारे में, आप इंसान सपना देखता है IAS का, इंसान सपना UPSC का नहीं देखता कि एग्जाम क्या है, क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो वो चीज़ फिगर आउट करने में भी फिर टाइम लगता है, तब आपको समझ में आता है कि यार इसमें तो और भी चीज़ें हैं, पढ़नी पड़ेंगी एक्चुअल में। कैसे फिगर आउट किया? फिर थोड़ा सा यूट्यूब का, उस टाइम तक मुझे लगता था कि कॉलेज के टाइम पर यूट्यूब वगैरह मैं काफ़ी एक्सेस करने लगा था। तो मतलब मुझे लगता है कि जितना डेमोक्रेटाइज इंटरनेट ने इन्फॉर्मेशन करा है, क्योंकि जिसकी फैमिली में अगर कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है तो उसके लिए इट यूज टू बी मिस्ट्री कि आप कैसे करोगे दिस एग्जाम एंड ऑल। बट इंटरनेट की वजह से इतना डेमोक्रेटाइज हो गया कंटेंट, तो आपके पास एक्सेस है कि हाँ भाई इस तरह से मुझे स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये चीज़ें पूछी जानी है, तो अगर मैं इस तरह से प्रिपेयर करूँ धीरे धीरे करके, एक ऑप्शनल होता है वो मुझे फिगर आउट करना है, ये सारी चीज़ें, तो एक रफ स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो उससे। आपने किस पॉइंट पे, लाइक जब आपने डिसीजन लिया तब आप कौन सी ईयर में थे? आई वुड से कि थर्ड ईयर तक मेरे दिमाग में सॉलिडिफाई हो चुका था कि अब मुझे PG नहीं जाना है, अब मैं क्लियरली UPSC में जाऊँ। इंटरेस्ट पहले से था बट सॉलिडिफाई ऑलमोस्ट थर्ड ईयर। बट दोनों चीज़ों को मैनेज करना एक साथ, बिकॉज उसकी प्रेप भी बहुत हैवी है, प्लस आई एम श्योर अपना एम्स का MBBS करिकुलम भी बहुत हैवी होगा, एग्जाम बहुत हैवी होगा, उसको कैसे मैनेज किया? हाँ मतलब ये होता था कि फिर उसमें मैं थोड़ा सा ये देखता था कॉन्ग्रुएंस, कि एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा मेडिकल साइंस ऑप्शनल होने वाला है, तो अब मैं एक बार सिलेबस पॉइंट निकाल के कि मैं फाइनल ईयर में अगर सबसे ज़्यादा मतलब उस टाइम पे फोकस करना पड़ रहा है कि अगर आप, क्योंकि फाइनल ईयर्स आर नॉट इजी थिंग, एम्स में अब देना है, बहुत सीरियसली देने पड़ेंगे, तो उसमें मैं फिगर आउट करता था कि यार ये टॉपिक दोनों में पूछे जा रहे हैं, तो इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ लेता हूँ कि इस तरह से मेरा ऑप्शनल भी प्रिपेयर हो जाएगा, इस तरह से मेरा फाइनल ईयर्स भी एग्जाम निकल जाएंगे। और फिर वहाँ पर थोड़ा सा आपको एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपके फाइनल ईयर्स और आपका कोर MBBS को, क्योंकि मतलब वहाँ पे यू आर नॉट जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ इट, आपको अच्छे से उसको ड्यू डिलीजेंस देना पड़ेगा, इंटर्नशिप भी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। एंड आई ऑल्सो सपोर्ट दिस थिंग, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई इंटर्नशिप के टाइम पे कि चलो यार मजे कर लेते हैं, या फिर इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टेक दिस करियर तो मैं क्यों ही इंटर्नशिप करूँ अच्छे से, मैं छुट्टी मार लेता हूँ उसमें। आई डोंट सपोर्ट इट, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने कोई एक फील्ड ली है जिसको आपने 4.5 साल डेडिकेट करें, यू शुड एक्सप्लोर इट, यू शुड, मतलब इट इज़ सच अ वंडरफुल टाइम इंटर्नशिप वाला पीरियड। तो मैनेज अगर आप कर सकते हो तो वो बहुत अच्छे से हो सकता है। आपने कैसे मैनेज किया? मैं वो टेक्निक जानना चाह रहा हूँ। अब इसमें छोटे छोटे टाइम अगर हम स्कूप कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो अगर हमारा कुछ ओवरलैपिंग चीज़ है तो उस चीज़ को हम एक साथ कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर हम टाइम, अब इंटर्नशिप के टाइम पे इट इज़ नॉट एज इफ कि यू आर वर्किंग फॉर 12 आवर्स ऑल्सो, मतलब ऑल दो टाइम्स ऐसे होते थे जब ट्रॉमा पोस्टिंग्स होती थी, तो वहाँ पे तो ऐसे पूरे 12 आवर्स की पोस्टिंग्स भी हुई हैं, और वो बहुत अच्छा फेज रहता है। उस टाइम पर आप कैरेक्टर बिल्डिंग सीखते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखते हो कि हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट इन सच ए प्रेशर वाली सिचुएशन, और ये चीज़ एक्चुअल में है, नॉट जस्ट फॉर द पेपर, यू आर लर्निंग इट फॉर योर लाइफ। तो ये चीज़ों को भी फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलें, तो अगर मैं 9 to 5 ड्यूटी कर आ रहा हूँ, 9 to 5 के बाद अगर मैं 1 घंटा रेस्ट भी करके, तो भी मेरे पास 3 घंटे रफली अगर मैं निकाल सकता हूँ, तो 3 घंटे इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर बिल्डिंग दैट बेस वाला कंटेंट। तो इस तरह से मैनेज करा जा सकता है। और ऑल्दो अगर मतलब बहुत अच्छा मैनेज कर लिया होता तो मेरे इंटर्नशिप के साथ निकल जाता। इट टुक मी 4 years आफ्टर इट ऑल्सो, तो दैट वे आई कैन नॉट टेक दैट। पर आप सोचो ना कि भगवान ने कुछ सोचा ही था आपके लिए, दे डिड नॉट गिव यू अ मीडियोकर रैंक ना, 100 आती तो यू माइट हैव गॉट समथिंग, बट IAS नहीं मिलता। भगवान ने कहा अभी सब कुछ नहीं देता इसको, धीरे धीरे करके इसका रैंक 1 देता। तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान का, बिकॉज फ्रेंकली सेइंग कि फर्स्ट रैंक इज प्योर लक, 100% लक। यू कैन नॉट मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान कह सकता है कंफर्म कि मेरी फर्स्ट रैंक आ रही थी, बिकॉज आई हैव सीन, मतलब जो बाकी रैंक्स वाले हैं दे आर माई क्लोज फ्रेंड्स ओनली, तो आई हैव सीन दैट दे आर नो वे लेस कॉम्पिटेंट इफ नॉट मोर कॉम्पिटेंट देन मी। तो मतलब दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट, सम ऑफ देम आर इवन मोर कॉम्पिटेंट,
क्योंकि जिस तरह की वो बैकग्राउंड से आते हैं, जिस तरह की वो ऑलमोस्ट a lot of them have done great thing in their life already, तो वहाँ से वो कैरी कर रहे हैं और मतलब सबने इतना एफर्ट लगाया है, कुछ ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है और काफ़ी बार इट इज़ नॉट व्हाट यू अकम्प्लिश, इट इज़ व्हाट यू हैव ओवरकम ऑल्सो। तो वो चीज़ें भी डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं। तो बाद में जाके इट्स प्योर लक। आप सिलेक्शन एक बार के लिए बोल सकते हो कि हाँ चलो मेरी मेहनत है, मैंने इतना एफर्ट्स लगाया है, तो वो चीज़ें सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। बट फर्स्ट रैंक या फिर टॉप रैंक्स, ऑल ऑफ इट इज़ प्योर लक। अगर मैं आपसे एक बात बिल्कुल दिल से बताना इस बात को, आपने यूपीएससी इसलिए चूज किया सिर्फ और सिर्फ कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, डायनेमिक है और मतलब इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, या उसमें थोड़ा सा पार्ट ये भी था कि एमबीबीएस, यू जस्ट गॉट फेड अप ऑफ एमबीबीएस, और जो कहानियां चल रही थी उस टाइम की 12-15 साल पढ़ाई करनी है, उसके बाद जिंदगी सेट करनी है? नहीं, ये वाला पार्ट मुझे बॉदर नहीं करता था, बिकॉज मतलब मेजरली इट वाज द पुल फैक्टर्स, आई वुड से सिविल सर्विसेज में जाना वाज मेजरली द पुल फैक्टर्स, देयर वाज नो पुश फैक्टर फॉर मी, क्योंकि एमबीबीएस वाज अ गुड फेज ऑफ माय लाइफ। और यहाँ से अगर मैं आगे की इमेजिन करता लाइफ की, ऑल्दो नो डाउट कि डॉक्टर की लाइफ एंड दैट टू ऑफ ए फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर इज हेक्टिक, तो वो सारी चीज़ें हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जो दैट propelled me कि इस चीज़ को छोड़ो, बस यहाँ से निकलना है मुझे, बट इट वॉज लार्जली द पुल फैक्टर्स ऑफ ए सिविल सर्विस एंड माई एस्पिरेशंस टू सर्व इन दैट डोमेन, तो दैट made me switch my career. How did your family react when you told them? My family was bit hesitant. They wanted me to pursue मतलब PG, at least PG कर लो, फिर उसके बाद सोच लेना, but मतलब फिर beyond a point they don't force me. मतलब उन्होंने मतलब एक टाइम के बाद मतलब I used to remember कि 8th 9th तक माई पेरेंट्स वर वेरी वोकल कि इतना ज़्यादा कि मतलब पूरा हाँ ये करना है, पढ़ाई करनी है। उसके बाद दे वेंट कम्प्लीटली डोरमेंट, अब तो मुझे जो करना है जैसे करना है तू कर ले, मतलब दे वर द बिगेस्ट सपोर्ट पिलर्स इन माई लाइफ, दे आर मतलब। तो दे हैव वर्कड थ्रू आउट कि एकेडमिक्स तू अपना डोमेन देख ले, उसके अलावा तुझे जो भी ज़रूरत है वो हमारा डोमेन, किसी भी तरह से तू बॉदर नहीं होगा इस चीज़ से। तो मतलब दैट वे दे हैव सपोर्टेड मी थ्रू आउट, और थोड़ा सा ही कन्विंसिंग लगी थी मुझे कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एंड आई डोंट थिंक कि अगर मैं एक बार पीजी साइड चला गया तो उसके बाद स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये मैं पूरा ही कंटिन्यू कर गया इस प्रेशर में कि मुझे अब डॉक्टर मैं बन चुका हूँ, इतना कमिट कर चुका हूँ, अब स्विच ना करूँ तो आगे जाके वो एक मलाल रह जाएगी, अरे यार मैं, फिर वो हेल्पलेसनेस आ जाएगी कि यार मैं बहुत अच्छे ज़िंदगी मतलब उस तरह से, मतलब इफ़ यू आर नॉट एन्जॉइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा पिंच करती है फिर आपको। तो इसलिए राइट टाइम पर स्विच कर लेना चाहिए, अगर आपको लग रहा है आपकी पर्सनल राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना चाहिए, ये मुझे लगता They must have pushed you a lot कि एक बार नीट पीजे पेपर देखे तो देख ले। हाँ मतलब तो चला ही होगा ना, इमोशनल ब्लैकमेल किया। मतलब नॉट एग्जैक्टली पेरेंट्स बट ग्रैंड पेरेंट्स डिड। तो दे सेड मी कि चलो, मतलब इनफैक्ट कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट देने के बाद भी मैं, इनफैक्ट आई वाज इन डेनिक्स, तब भी बोलते थे कि एक बार पीजी का एग्जाम दे दो भाई, क्या पता वहाँ पे अच्छे तुम वो बन जाओ, ऐसा कुछ वो चीजें रहती है, बट देन यू टैकल इट बाय योर ओन। एक बार दे के देख ले, मत जाइयो, मत ज्वाइन करिए, वो चीजें होती है। आई थिंक इंटर्नशिप मस्ट बी अ टफ टाइम ना। हाँ, मतलब आई वोंट से दैट इट वाज अ टफ टाइम, मतलब चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि मैं इंटर्नशिप में आई स्टार्टेड गिविंग ड्यू कंसिडरेशन कि मैंने थोड़ा सा कोर्स वगैरह लेना चालू करा कि मैं थोड़ा यूपीएससी की तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि बाकी बच्चे भी इंटर्नशिप के टाइम पे पीजी उनके दिमाग में बहुत क्लियर हो जाता है, तो वो नवंबर का एम करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मुझे भी यार अब थोड़ा सा सीरियसली तैयारी चालू करनी है, और पोस्टिंग्स वगैरह रहती हैं साथ में, वो भी अटेंड करना ज़रूरी है। तो मतलब टफ इन द सेंस कि थोड़ा हेक्टिक है, बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपोजर, आई वुड से कि इतना अच्छा यू गेट टू वर्क इन डोमेन्स, मतलब जो कि आप एमबीबीएस में नहीं वो एक्सपोज होते हो उन चीज़ों से, बट बहुत अच्छा लगता है ऐसे काफ़ी चीज़ें आप। बट लाइक 8-10 घंटे इंटर्नशिप करने के बाद, आई एम श्योर हेक्टिक इंटर्नशिप होगी एमसीपुर की। बिल्कुल। उसके बाद यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर टायर्ड, एंड देन सिटिंग डाउन एंड स्टडिंग अगेन, और आपको पता है आपकी 6-8 महीने में आपका एग्जाम आने वाला है, तो मतलब और जो आप पूरा दिन लगा रहे हो 10 घंटे, वो इस एग्जाम के किसी काम का नहीं है, तो दिमाग में यार वो तो टेंशन तो रहती है ना, बिल्डअप होती रहती है। बिल्कुल, मतलब मैं इस चीज़ को ऐसे रैशनलाइज कर रहा था कि अगर मैं पूरे दिन में इफ आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू, मतलब दैट बिल्ड्स न्यू क्वालिटी इन मी और दैट टीचेस मी समथिंग, तो मेरा दिन मतलब सक्सेसफुल हो गया। मतलब मुझे आज भी मतलब इट इज समथिंग, मतलब एक ट्रेट कह लीजिए या हैबिट कह लीजिए कि आई गेट टू लर्न समथिंग समडे, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मैं कुछ नया सीख लिया, तो दैट नोवेलिटी हिट्स मी। तो वो चीज़ मुझे रहती थी कि यार आज मैं इंटर्नशिप में ये सीख कर आ गया कि आज मैं अब अच्छा स्नेक बाइट का केस मैं मैनेज कर सकता हूँ, डॉग बाइट का केस अब मुझे प्लास्टर लगाना आ गया उस तरह से। तो इट मतलब
काफ़ी इट मोटिवेट्स मी। तो उस वे में मैं उसको नेगेटिवली नहीं देखता था कि यार आज मेरे 10 घंटे इसमें चले गए, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगा। मतलब एक मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि मुझे ड्रॉप ईयर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यूपीएससी के साथ भी अनफेयर हो जाएगा कि मतलब आप बिना पढ़े अगर आप यूपीएससी भी देने जा रहे हो तो इट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। तो मैं दिमाग में क्लियर था कि इसके बाद मुझे ड्रॉप ईयर लेना है, उसमें तो फिर मैं फुल्ली फोकस यहाँ करूँगा। तो अब ये मेरा लास्ट पार्ट है अगर मतलब एमबीबीएस का, तो इसको तो अच्छे से करना चाहिए। सो डू यू एवर थिंक बैक कि अगर आपने इंटर्नशिप स्किप करी होती है, वो टाइम पढ़ाई करी होती यूपीएससी की, तो पहले साल में ही यू कुड हैव क्लियर्ड? ना, इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि मतलब फिर उसमें मेरा इतना अच्छा पार्ट लाइफ का मिस हो जाएगा। इंटर्नशिप वाज सच ए गुड फेज ऑफ माय लाइफ, मतलब उस चीज को मैं कैसे एलिमिनेट कर दूं। पार्टी करी पूरी इंटर्नशिप? बहुत बहुत तो नेसेसरी एलिमेंट है। वहाँ सीनियर्स इतने अच्छे होते हैं ना, वहाँ पे आप सीनियर्स का एक छोटा सा काम कर दो। पीजीज को बस ये चाहिए कि राउंड में मेरे लिए एक वो डिस्चार्ज पेपर बना दी, इतने खुश हो जाएंगे कि रात में चल पूरी पार्टी करके आते। जोधपुर में स्पॉट्स हैं पार्टी करने के? अरे बहुत है, मतलब जोधपुर का फूड इज सच, हाँ मतलब इट इज अ डेलिकेसी। तो दैट वे, और हॉस्टल में फिर खुद ही हॉस्टल अपने आप में पार्टी अड्डा होता है, तो बहुत। मैं जोधपुरी कचौड़ी का बहुत फैन हूँ। हाँ, वो तो मतलब यूजुअली ऐसे राउंड्स के बाद कचौड़ी आ जाती है। कंसल्टेंट भी खिलाते हैं कभी कभार, तो राउंड अच्छे प्रेजेंट कर दिए तो कंसल्टेंट की तरफ से पार्टी। कौन सी फेवरेट है आपकी, प्याज वाली दाल वाली? प्याज वाली। जब आपने पहली बार एग्जाम दिया यूपीएससी का, ऑल्दो यू नो आप ड्रॉप के लिए रेडी थे, बट जब रिजल्ट नहीं आया तो कैसा लगा? सैड लगता है, ऐसा ये सब इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं आई वाज ओके कंफर्टेबल विद, सैड लगता है। बट फिर अगर आपको पता है कि कुछ आपकी शॉर्टकमिंग्स थी, अगर आपका कुछ लेक्यूनास थे प्रिपरेशन में, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा हिट नहीं करती, क्योंकि फिर तो वो मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट भी हो जाएगा ना कि अगर मैं पूरी तरह से तैयार भी नहीं हूँ, फिर मैं कैसे भगवान से मांगूँ कि मुझे भगवान इसमें पास करा दो। तो मतलब जब आपको क्लियरली पता होता है कि ये आपकी कमियाँ थी अभी, तो उस चीज़ में आपके पास काफ़ी स्कोप है इस चीज़ पर इम्प्रूव करो। और जब आप अब मैं अगर इस वाले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो थोड़ा सा होपलेस होता मैं कि अरे यार मैंने इतना एफर्ट्स डाला फिर भी अब नहीं हुआ, तो अब फिर मुझे बहुत सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ कमी रह गई। जब आपको कमियां इतनी अच्छे से दिख नहीं रही, जब तक कमियां दिख रही हैं क्लियरली, तब तो होपलेस होने की कोई बात ही नहीं है। फिर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कमियों पर वर्क करो। तो दैट वे इज कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में जब मुझे फेलियर मिला तो बुरा लगा, नो डाउट, बट फिर कमियां दिखती गई और कमियों पर वर्क करना ही था फिर उसके बाद। क्या क्या सब्जेक्ट्स थे आपके पास? बाकी अपार्ट फ्रॉम मेडिकल साइंसेज, दैट इज माय ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसके अलावा होता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वाज देयर, पॉलिटी इज देयर, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, अ लॉट ऑफ स्मॉल सब्जेक्ट्स आर देयर। तो लार्जली ऑल द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट वाले, साइंस एंड टेक इज देयर, एनवायरनमेंट इज आल्सो बिग सब्जेक्ट। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है जो डॉक्टर्स यूपीएससी के लिए जा रहे होते हैं, दे रन अवे फ्रॉम मेडिकल साइंस। वो कहते हैं कि सिलेबस हमें पता है कितना पढ़ा है और इतने से पार्ट के लिए हमें इतना पढ़ना पड़ेगा। आपने क्यों लिया? मुझे अगर कोई राइट टाइम पे बता देता कि शायद मैं भी छोड़ देता। मतलब मैं इनफैक्ट एक स्टोरी बताता हूँ कि मेरा फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, दिल्ली में ही अटेम्प्ट था। तो वन ऑफ माय सीनियर वाज आल्सो गिविंग द अटेम्प्ट विद मी, दोनों का मेडिकल साइंस ऑप्शनल था। पेपर जिस दिन फ्री हुआ उस दिन दे के निकले और मैं बहुत ऐसे खुल के ऐसे बोल रहा था कि बहुत अगली साल मैं चेंज कर रहा हूँ पेपर, मेडिकल साइंस तो नहीं होगा। क्योंकि वही अगेन वास्टनेस ऑफ द एग्जाम कि आप यूपीएससी इतना वास्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, सब कुछ याद करना है, इतना बहुत कुछ अपने आप में इतना बर्डनसम। उसके ऊपर से मेडिकल साइंस वो 19 सब्जेक्ट, जो कि मतलब कॉलेज में प्रोफेशनल एग्जाम्स में ही एक एक सब्जेक्ट दिन में पूरी हालत खराब हो जाती थी। यहाँ तो आपको पूरे के पूरे मतलब ऑलमोस्ट 3 प्रोफेशनल एग्जाम्स आप एक ही दिन में दे रहे हो, तो वो तो मतलब इतना ज़्यादा बर्डनसम हो जाता था कि मतलब वो इतना थकाने वाली चीज़ हो जाती थी। बट फिर उसके बाद लगता है ना कि मेडिकल साइंस इज द ओनली ऑप्शनल दैट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट। तो ये चीज़ें जिस ऑप्शनल में है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि आई वॉज इन टू दैट साइकिल, प्री मेंस इंटरव्यू मेरे 3 बार ऐसे ऐसे चलता रहा कि अब मैं अगर स्विच भी करूँ ऑप्शनल, तो आपको कोई भी चीज़ फ्रॉम द बेसिक्स अगर स्टार्ट करनी है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो उस चीज़ के लिए भी बहुत आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप राइट टाइम, अगर आप कॉलेज के टाइम पर अगर ये राइट डिसीजन ले रहे हो, तो मुझसे अगर अभी कोई भी पूछता है कि मुझे कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, तो मैं उसे सिंपली कहता हूँ कि देखो एट द एंड इट इज़ योर कॉल, तो आपको जो भी सही लगे वो उस पर आपको करना है। आप चीज़ें चेक करो कि कॉन्फिडेंस और कंफर्ट इस कौन से सब्जेक्ट में आपको ये मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई एमबीबीएस है तो सिर्फ उसे मेडिकल साइंस, अल्टरनेटिव्स जरूर एक्सप्लोर करो। और यूजुअली एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी लोगों का प्रिफर्ड रहता है ऑप्शनल। मेरे भी दोस्त हैं मेडिकल साइंस के जो कि उन्होंने लिया एंड दे हैव डन फेयरली वेल। बट इस चीज़ को भी ये नहीं कहूँगा कि एमबीबीएस मेडिकल साइंस लो ही मत, क्योंकि
ये अगेन इज समथिंग दैट यू हैव लर्न थ्रू आउट योर MBBS 4.5 years, इनफैक्ट इंटर्नशिप को इंक्लूड करके 5.5 years ऑफ योर लाइफ यू हैव डेडिकेटेड टू दिस थिंग, एंड यू आर मतलब सबकॉन्शियसली आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं. एक ऑप्शनल में अगर आप इफ़ यू आर एबल टू आंसर समथिंग दैट यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर, तो दैट इटसेल्फ शोज कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस ऑप्शनल में. तो इसीलिए मेडिकल साइंस इज दैट वे इज ऑल्सो गुड ऑप्शनल. तो आई फाउंड कि यार ठीक है यार, अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा नहीं कर पाया हूँ, बट स्टिल इट इज़ समथिंग दैट आई लाइक टू रीड, तो मैं कंटिन्यू इसी में करूँगा. फिर आई गेव माई सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स विद इट. सो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में डिड यू क्लियर प्री? हाँ, in my first attempt I cleared my pre, I cleared my mains, I also wrote interview, and in fact I got into Danix in my very first attempt. I couldn't see my result in the main list that year because UPSC में ऐसा concept होता है कि main list आती है, बाद में reserve list आती है. तो I got into Danix through reserve list, but unfortunately जो वो result day वाला main list उसमें नाम नहीं था, but I cleared it. सो डेनिक्स छोड़ने का क्या रीजन था? अगेन UPSC जो भी लोग देते हैं ना, तो दे हैव दैट एम ऑफ IAS, बिकॉज IAS इज समथिंग दैट ऑफर्स यू दैट ग्रेटर प्लैंक. अगर डेनिक्स भी है, इट इज ऑल्सो फील्ड जॉब. मेरा इंक्लिनेशन फील्ड की तरफ था, दैट्स व्हाई आई केप्ट डेनिक्स वे अबव अदर सर्विसेज. सो डेनिक्स का जो स्कोप ऑफ वर्क है उसको और एनलार्ज कर दें तो दैट इज IAS. तो फॉर द सिंपल रीजन, अगर मेरे पास अटेम्प्ट है और समथिंग बिगर आई कैन गेट, तो इसलिए IAS के लिए मैं फिर ट्राई करा. वो कहते हैं ना कि अभी हाथ में कुछ है, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश. आप अभी एक फील्ड छोड़कर आए हो, आपको आज कुछ मिल रहा है, तो यूपीएससी में आपको कुछ मिल रहा है, द काइंड ऑफ कंपटीशन दैट यूपीएससी हैज, आई एम श्योर उसको छोड़ना आसान नहीं होगा. बट अगेन इसमें ऐसा देखना है कि आप एक बार किसी सर्विस में आ गए तो यू डोंट हैव टू रिजाइन फ्रॉम दैट सर्विस. मतलब द रूल्स आर चेंजिंग नाउ डेज, बट what used to happen in my time कि एक बार आप सर्विस में आ गए तो यू कैन राइट सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स व्हाइल बीइंग ऑन द सर्विस. आपको लीव लेनी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आप अप्लाई कर सकते हो, एंड इफ मतलब इफ यू कैन प्रिपेयर व्हाइल बीइंग ऑन सर्विस तो दैट इज ऑल्सो फाइन. बट इट ऑल्सो गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंफर्ट कि आप पहले आपके पास कुछ भी नहीं था. मतलब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं मेडिसिन कंप्लीट कर, MBBS कंप्लीट कर चुका था और अभी तक UPSC का कुछ भी नहीं मिला था. तो आई वाज मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास. बट व्हेन आई गॉट इनटू डेनिक्स, आई एटलीस्ट आई हैड समथिंग. सो यू चोज डेनिक्स? हाँ, आई चोज डेनिक्स. हाँ, नॉट अबाउट IAS, इट वाज like at that rank I got into Danix. So it is from the very same exam. I kept it above some other services, so I got into Danix, and then I continued preparation while I was serving in Danix. I was training in Danix. सो फिर सेकंड ईयर प्रेप कैसा रहा? फिर सब्सिक्वेंट प्रेप में चेंजेस ये आ जाते हैं कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग विद पीपल, मतलब डेनिक्स में मेरे सारे बैचमेट्स हैं, दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड UPSC एग्जाम, एंड मेनी ऑफ देम आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग विद मी. तो एक वो इकोसिस्टम आपको मिलता है. आई प्रिपेयर्ड इन एब्सोल्यूट आइसोलेशन जब पहले अटेम्प्ट में, इनफैक्ट सेकंड अटेम्प्ट ऑल्सो टिल मेंस आई वाज इन कंप्लीट आइसोलेशन. बट सब्सिक्वेंट स्टेजेस में आप जब एक ऐसे इकोसिस्टम में पढ़ते हो जो कि पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल इन दैट एग्जाम, दे कम अप विद सम इनपुट्स जो कि आपको एक्चुअल में हेल्प करते हैं. आपको एक वैसा सराउंडिंग एनवायरनमेंट वैसा मिल जाता है जहाँ यू कैन डिस्कस, आप कुछ नया सीख सकते हो. तो दैट वे इज योर प्रिपरेशन ऑल्सो चेंजेस. और फिर एक चीज़ ऐसा होता है कि आपका बर्नआउट मूवमेंट आता है. अब जैसे मैं अगर अपनी फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट की अगर कंटिन्यू करता है स्ट्रीक और विदाउट गोइंग इनटू दिस ट्रेनिंग साइकिल, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मैं बर्नआउट भी हो जाता, क्योंकि इतने टाइम तक इतना वो सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो वहाँ पे आपको एक मतलब अगेन वही कॉलेज वाला सीन, थोड़ा सा पार्टी एंड ऑल, वो आपको मिल जाता है ट्रेनिंग में. तो यू गेट टू रिलैक्स, यू गेट टू चिल. तो उसके साथ साथ आप बैलेंस करते हुए चलते हो ना, तो इट ऑल्सो रिचार्जेस यू इन सम वे और द अदर. ऐसी क्या टेक्निक है आपकी पढ़ने की जो आई थिंक आपको कि आपने सीक्रेटली पढ़ते पढ़ते बना ली, सोच ली, जिससे हमारे बाकी एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके? मुझे लगता है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. तो अगर आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी एग्जाम में सक्सेस चाहिए, तो हार्ड वर्क हैज टू बी. ये तो प्रोफेसरों वाली बात है. टेक्निक बताओ कि ये चीज ऐसे कर सकते हैं. टेक्निक अगेन मतलब people do ask me this thing. I say that I don't hold any elixir कि मैं ऐसा कुछ अच्छा, बता. आपका चलो टिपिकल डे कैसा होता था? सच हाँ, टिपिकल डे मतलब अब बिफोर, अब इसमें भी डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि वंस गेटिंग इनटू ट्रेनिंग और वंस गेटिंग इनटू डेनिक्स चीज़ें बदल गई थी. उससे पहले इट यूज्ड टू बी कि आई वोक अप एट 7 इन मॉर्निंग. उसके बाद मैं पढ़ने बैठता था, अराउंड 2-3 आवर्स पढ़ता था. फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट का एक ब्रेक आता था. फिर उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ता था. लंच करा, फिर उसके बाद रिलैक्स करा थोड़ा बहुत.
फिर उसके बाद पढ़ाई हो जाती थी 3-4 घंटे, थोड़ा बहुत इवनिंग में वॉक कर लिया, कुछ कर लिया, छोटा मोटा चिल हो गया, फिर उसके बाद अगेन डिनर एंड थोड़ा सा रिलैक्सेशन, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा, थोड़ा न्यूज़ वगैरह देखी, फिर उसके बाद रात में 1 घंटा 2 घंटा रिवीजन करा एंड यू गेट टू स्लीप। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा ब्लैंड था, मतलब वही है कि अगेन इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी डिसिप्लिन। मैं डिसिप्लिन को हमेशा मोटिवेशन से ऊपर प्रायोरिटाइज करता हूँ हमेशा, बिकॉज मोटिवेशन इज समथिंग दैट इज इनएविटेबली गोइंग टू डिप, और डिसिप्लिन इज समथिंग दैट यू कैन मेंटेन फॉर लॉन्ग। तो इसीलिए एक अगर आपको इफ़ यू आर टारगेटिंग एन एग्जाम लाइक यूपीएससी, यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन, यू विल हैव टू बी डिटरमाइंड, आपको थोड़े से रिगरस आवर्स देने ही पड़ेंगे ऑलमोस्ट डेली के। तो वो चीज़ बहुत नेसेसरी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट अगेन देन देर आर समथिंग यू कैन प्लान स्ट्रेटेजिकली। अब जैसे रिवीजन काफ़ी लोग मिस करते हैं, काफ़ी लोग ये लगता है कि मैं कुछ और नया नया पढ़ता रहूँ तो मेरा कंटेंट बेस ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा, बट दैट इज़ नॉट राइट। आपने जो पहले पढ़ रखा है, अब ऐसा तो कोई है नहीं कि वी आर नॉट मशीन्स की हमने जो पढ़ा है वो रिटेन ही हो जाएगा हर चीज़ में। हर चीज़ एक उसकी शेल्फ लाइफ होती है। इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग इट, वी आर मतलब वो भूलना ही है। तो इसलिए जो चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है उस चीज़ को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। एंड रिवीजन में अगेन यू कैन रिवाइज इट थ्रू मल्टीपल टैक्टिक्स। आप उसको सिंपली जो आपके नोट्स हैं उसको वापस पढ़ लिया तो वो रिवीजन हो गया, या फिर आपने उसके कोई क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चंस के थ्रू भी एक रिवीजन आप कर सकते हो, या फिर एक एक्टिव रिकॉल करना भी आप काफ़ी अच्छे से, कुछ भी नया टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आप वापस रिकॉल करो कि यार ये मेरा वहाँ पे लिंक था तो इस चीज़ को मैं कितना याद कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं। तो जो आपके पास कंटेंट है वो कंसोलिडेटेड हो जाएगा और उसके साथ साथ फिर आप इंटरकनेक्शंस बना सकते हैं। आई थिंक अभी भी एग्जाम आने वाला है ना, मई 24 को एग्जाम है। बिल्कुल, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स है, तो क्या है आपकी एडवाइस एस्पिरेंट्स को प्रीलिम्स में कैसे करना है? अब तो मैं कहूँगा कि सिंस अब तो 8-9 दिन ही बचे हैं तो रिलेटिवली कॉन्फिडेंस पे फोकस करो, क्योंकि जिसने अभी तक सस्टेन कर लिया है यू ऑलरेडी होल्ड दैट नॉलेज। कोई भी ऐसा मतलब इंसान नहीं होता है जो कि एस्पिरेंट नहीं होता है जो कि प्रीलिम्स लिख रहा है और ही नोज एवरीथिंग। किसी को भी पूरे 100 क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि दैट इज़ द नेचर ऑफ द एग्जाम। तो यहाँ पे फिर कॉन्फिडेंस वर्क करता है। जितना आपको आता है, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर टू टेक रिस्क ऑन दैट नॉलेज, आप कितना अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग यूज करते हो इन सॉल्विंग द, मतलब अगेन MCQ सॉल्विंग इज a स्किल। MCQ सॉल्विंग इज नॉट प्योरली नॉलेज बेस्ड, it involves elements of logical reasoning in other domains also. So इस चीज़ पर हमने कितनी प्रैक्टिस करी है, it is going to materialize in the results of prelims also. इसके अलावा बी काम, बी composed, कॉन्फिडेंस पे फोकस करो। बहुत ज़्यादा आप इस टाइम पे नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ लिया उसे रिवाइज करो और स्टे रिलैक्स्ड एज मच एज यू कैन। वेरी नाइस। जब आपने अपना सेकेंड एग्जाम देने जा रहे थे तो उससे 1 घंटा पहले आपके माइंड में क्या चल रहा था? एक थोड़ा सा शायद प्रेशर फील होता है कि अगेन एक बार मैं पूरी तरह से मुझे सक्सेस नहीं मिली है, अब इसमें थोड़ा सा बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा है। कि अब पहले ये रहता था कि पहला अटैम्प्ट जब मैं दे रहा हूँ कि मेरा इंटर्नशिप जैन में कंप्लीट हुआ है, मई में मेरा प्रीलिम्स था, 5 ही महीने की तैयारी थी, मेंस में भी 9 महीने की तैयारी थी, बट अब तो आपके पास पूरा 1.5 साल हो चुका है। तो एक एडेड प्रेशर आपके ऊपर रहता है और ये सेल्फ इम्पोज प्रेशर होता है और कोई आपको प्रेशर फील भी नहीं करा रहा है। बट ये चीज़ काफ़ी गलत है, क्योंकि आप इतना आपको अगर बर्डन ले लोगे एग्जाम देने से पहले तो वो चीज़ इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट नेगेटिवली इन योर रिजल्ट्स ओनली। बट आप अपने आप को कितना ज़्यादा कंपोज रख सकते हो उस मोमेंट में, तो वही फिर अगर आपको ऐसे थॉट्स आते हैं, और दिस इज समथिंग दैट इज इनएविटेबल, नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे, बट आप किस तरह से उनको कंट्रोल कर रहे हो, आप किस तरह से अपने दिमाग को फोकस रख पा रहे हो कि यार चलो ठीक है, इट इज़ अनदर एग्जाम, मैं और आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई नॉलेज, मैं इतना मेहनत इसीलिए तो करी है कि मैं इसको आराम से टैकल कर सकूं। तो फिर उस जोन में फिर आप एग्जाम लिखने जाते हो, तो एक बार जब एग्जाम में चले गए तो फिर यू आर इन टू दैट फ्लो स्टेट, फिर चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे हो जाती हैं फिर। तो उसमें भी आपका प्री और मेंस क्लियर हो गया था? हाँ, I also gave interview in my second attempt also. But and ironically the marks dipped in my second attempt. In fact, what I got in my first attempt, it was 30 marks less in my second attempt. So that was again a point of contemplation for me कि मैंने जब मेहनत ज़्यादा कर ली, जब I have invested 1 year more in exam, और फिर उसके बाद भी अगर मेरी मार्क्स उतने रिफ्लेक्ट नहीं हुए, इनफैक्ट इट डिप्ड, तो फिर कुछ ना कुछ कमी रही है। एंड मतलब वो कमी वाज इन एक्सप्रेसिंग दैट नॉलेज इन द पेपर। अब मेंस है जो कि एक्चुअली यूपीएससी का अगर एग्जाम की बात करें तो यूपीएससी इज ऑल अबाउट मेंस, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मार्क्स आर डिसाइडेड बाय मेंस। अब इसमें डिपेंड करता है, पूरा सब्जेक्टिव होता है, आपके क्वेश्चंस हैं, उसके पूरे आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो आपके पास पूरा दुनिया की नॉलेज हो सकती है, बट इफ़ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट इन द राइट मैनर तो आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर नॉलेज
इन अ वेरी सिस्टमेटाइज्ड मैनर, तब ही वो चीज़ आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगी। तो उस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत थी। और सेकंड अटेम्प्ट में मुझे लगता है आई मिस्ड ऑन दैट कि मैं नॉलेज बिल्ड करने में ही चला गया, कंटेंट मैं गैदर करने में चला गया, उस चीज़ पे ही फोकस करा, बट उसको आंसर में लिखने में इतना फोकस नहीं करा। तो एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई वर्कड अ लॉट इन माय थर्ड अटेम्प्ट। तो उसने फिर रिजल्ट्स दिए। बट मैं चलो भाई जानना चाहता हूँ कि जब आपका सेकंड अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं आया, फिर जो अपने आप पे डाउट आते हैं बहुत सारे, और वो डाउट आदमी को अंदर से खत्म कर देते हैं बिल्कुल कि यार नहीं हो पा रहा, सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, क्या मैंने गलती कर दी एमबीबीएस छोड़कर, बिकॉज वो तो एक सेट पाथ था ही ना, यू वर ऑलरेडी एमजोनियन, अच्छा पढ़ रहे थे, निकल जाते। एट दैट टाइम हाउ डिड यू नो इंस्टिगेट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ? ये है, मतलब मैं इनफैक्ट वो रिजल्ट का डे का ही बताता हूँ। मैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, मैं मतलब इतना एक सिंपल फिलोसफी पे वर्क करता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। रिजल्ट आने से पहले ही मैं उस प्रिपरेशन जोन में जा चुका था, क्योंकि एक तो यूपीएससी की साइकिल इस तरह की है कि जब तक आप रिजल्ट आता है उसके ऑलमोस्ट 20 डेज या फिर 15 डेज में ही अगला प्रीलिम्स आ जाता है। तो इफ़ यू आर मतलब पूरा अगर आप वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या, तो आपका वैसे ही वो सेक्रीफाइस हो जाएगा अगला प्रीलिम्स। हाँ एक्चुअली, हाँ, तो इसलिए आपको प्रिपेयर पहले। अच्छा तो भाई तो हमसे ही बुरी हालत है, से बुरी हालत है। एग्जैक्टली, बुरी हालत चल रही है। तो वो प्रिपेयर आपको पहले से ही करना पड़ता है। और मतलब हर कोई जिसका कितना लंबा टाइम क्यों लगता है रिजल्ट आने में? क्योंकि वो एग्जाम साइकिल इस तरह की है, थ्री स्टेजेस में साइकिल हो रही है। हाँ। प्रीलिम्स है, फिर उसके 3 महीने बाद मेंस है, फिर उसके 4 महीने बाद इंटरव्यू है, और इंटरव्यूज 3-4 महीने तक चलते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है। तो एंटायर साइकिल इज 1 साल की करीब करीब। अच्छा, तो अगर आप अगला अटेम्प्ट करना भी चाहो तो बेसिकली मोर ऑफ अ मेमोरी सेटअप है। बिल्कुल, अगर आप वेट कर रहे हो कि मैं रिजल्ट क्या आएगा फिर उसके बाद में सोचूं, तो आपके पास 10-15 दिन ही है। तो इसलिए आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब एटलीस्ट होप फॉर द बेस्ट कि मेरा हो जाए, बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वो हर कोई मतलब जो भी एस्पिरेंट होता है वो तैयारी तो करता होता है, बट वो एक वो है कि रिजल्ट के बाद एक्चुअल में आपको बूस्टर्स मिलते हैं कि भाई आप फोकस करना है कि आप नहीं करना है। तो आई वॉज इन माई लाइब्रेरी ओनली, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहा था, ऑल्दो इतनी नर्वसनेस में पढ़ाई होती नहीं, एंग्जाइटी वगैरह पूरी रहती है। एक बार रिजल्ट आया, रिजल्ट चेक किया, नहीं था नाम, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं, थोड़ा सा वही है, घर पे बात कर लिया, बता दिया कि नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद मैं पता नहीं सरप्राइजिंगली आई वाज वेरी काम इन माय सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि उस टाइम भी अगेन मुझे पता था कि यार कमी मैं अपनी फिगर आउट कर चुका था कि मैंने प्रैक्टिस कम करी है, आंसर प्रैक्टिस, आई हैड दैट नॉलेज नो डाउट, बट फिर मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाया आंसर। तो वो मेरे दिमाग में कमी मुझे पता थी, तो मुझे जब कमी पता है तो फिर मुझे इस पर वर्क करने की। तो इन द वेरी नेक्स्ट आवर मुझे पता है कि मैं लाइब्रेरी में था, रिजल्ट आया, और आई रोट अ मैसेज ऑन माई बैच का ग्रुप कि भाई आज से पार्टी बंद रात में, तो मेरा रूम खाली करो और आज से मैं पढ़ाई में वापस लग रहा हूँ। तो उसके बाद आई एंट इनटू दैट वाला जोन पूरा पढ़ाई का, फिर चालू हो गए। एक बार आप पूरे अच्छे से फ्लो में आ जाते हो तो वो चीज़ इतनी फील भी नहीं होती। इफ़ यू स्टार्ट एन्जॉइंग इनटू दैट प्रोसेस कि हाँ आज मुझे कुछ नया सीखना है, आज मैं ये कुछ अपने आपको इम्प्रूवमेंट्स महसूस होता है ना अंदर, तो फिर वो इतना बर्डन फील नहीं होता है। तो ये मुझे लगता है। थर्ड अटेम्प्ट में आई थिंक आपने कहा एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करे, और क्या चेंजेस लेकर आए अपने में? अगेन एक इंटरव्यू की स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इंटरव्यू में मतलब मैं आई वॉज लैकिंग समवेयर, तो मेरे दोनों अटेम्प्ट्स में मेरे मार्क्स काफ़ी कम थे, मतलब काफ़ी कम नहीं बट रिलेटिवली 171 थे और 173। और मतलब मुझे लगता था कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस आउट कर रहा हूँ, या तो कॉन्फिडेंस का इशू आ रहा है या फिर मैं अच्छे से। अब मैं जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ इंटरव्यू का, तो उसमें मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट कि यू आर ए डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, आप किसी जगह गए हो, आप मुआयना कर रहे हो, और एकदम से आप जब चलने लगे तो पीछे से आवाज़ आई कि वो देखो, और एकदम से आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी। तो आपने देखा तो कुएं में एक फैमिली, मतलब एक मदर और अपनी डॉटर को लेके कूद गई। तो नाउ हाउ आर यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट? तो आई स्टार्टेड बाई सेइंग कि मैं उसे रेस्क्यू करूंगा, आई विल सेंड हर टू अ हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद आई विल इन्वेस्टिगेट द केस, आई विल इन्वेस्टिगेट फ्रॉम सुसाइडल एंगल, होमिसाइडल एंगल, जो भी है, इफ देयर वर एनी ग्रीवेंसेस तो उसको एड्रेस करने की कोशिश। आई आंसर्ड इन दैट वे। तो उसके बाद जो सर थे इंटरव्यू पैनल में, उन्होंने पूछा कि आर यू मिसिंग आउट ऑन समथिंग? तो आई मतलब मुझे याद नहीं आया ऐसा कि ऐसा, तो यू बीइंग अ डॉक्टर यू कुड हैव डन समथिंग एल्स। तब उन्होंने रिमाइंड कराया, तो फिर मुझे लगा कि अरे यार ये तो कितनी बड़ी मूर्खता कर दी मैंने। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सबसे पहले तो सीपीआर देना था उस पेशेंट को। तो ये चीज़ फिर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका टेस्ट करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को आंसर कर रहे हो। यू नीड टू इमेजिन योरसेल्फ इन दैट पूरा सिनेरियो कि मैं एक्चुअल में डीएम हूँ और मेरे सामने, एंड डीएम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड,
तो मेरे सामने अगर कोई पेशेंट कोलैप्स कर रहा है तो मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्स तो यही है कि मैं उसे सेव करूंगा, सीपीआर मैं तो खुद दे ही सकता हूँ, मुझे क्यों डिपेंडेंट होना है कि किसी एम्बुलेंस को मैं बुलाऊं। तो वो जो कितने कंफर्टेबल होकर आप इतने कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं, प्रेशर दैट यू मस्ट बी हैविंग एट दैट मोमेंट। यस एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद आप एनालाइज करने लगते हो कि अरे यार मैंने एक आंसर गलत कर दिया, अब मैं वापस और कुछ खराब कर दूंगा। तो वो चीज़ें रहती हैं। और यही फिर आप सब्सिक्वेंट प्रैक्टिसेस में आप जब इनपुट्स लेते हो दोस्तों से, सीनियर से, भाई इस तरह से ऐसे रिएक्ट करना है, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है, एकदम नॉर्मल बिहेव करना है, बिकॉज इंटरव्यू इज़ नॉट, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू फोर्स यू, इट इज़ जस्ट ए कन्वर्सेशन। आप बहुत आसानी से, कन्वर्सेशन विद वेरी लर्नड पीपल, तो बहुत आसानी से आप आंसर करो, बहुत रिलैक्स्ड होकर आंसर करो, एक्सप्रेस वॉट यू एक्चुअली फील। आप मेडअप आंसर करोगे तो इवेंचुअली फॉल्टर कर जाओगे, बट यू जेन्युइनली बिलीव इन समथिंग एंड यू आर एक्सप्रेसिंग दैट, तो वो चीज़ वर्क करती है फिर इंटरव्यू में, एंड दैट वर्कड फॉर माय थर्ड अटेम्प्ट आल्सो। थोड़ा और क्वेश्चन बताओ जो आपसे पूछे गए इंटरव्यू में। हाँ, जैसे अब मैं सेकंड अटेम्प्ट का बताता हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे कि भाई इंट्रोडक्शन पूछेंगे, ऐसा सब कुछ पूछेंगे। सर ने सीधे पूछा कि यू बीइंग अ डॉक्टर एंड ऑल्सो आई वॉज इनटू डायनेक्स दैट टाइम, तो फिर सर ने बोला कि यू आर ऑल्सो अ सिविल सर्वेंट नाउ, तो लेट्स से कि व्हाट आर these instruments of a administrator, imagining yourself as a surgeon, and what type of surgery will you do? तो ये थोड़ा सा मैं एनिमेटिक सा लगा मुझे कि यार इसका मैं कैसे आंसर करूँ। तभी मैं बोला सोशल सर्जरी करेंगे सर, एंड माय इंस्ट्रूमेंट्स वुड बी द स्कीम्स एंड द रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ अ डीएम। बट हाँ ठीक है, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत ऐसा कन्विंसिंग सा आंसर नहीं दिया। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब दैट मतलब प्रेशराइजेज यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो मतलब और ज़्यादातर क्वेश्चन सिंस आई एम अ डॉक्टर तो उस बैकग्राउंड से आपसे पूछे जाएंगे। अब इस साल भी मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे, इनफैक्ट इस बार मुझसे ये पूछा गया था, लास्ट में जाते जाते सर ने पूछा था कि देयर इज़ अ वेरी फेमस कोट बाय वोल्टेयर ऑन डॉक्टर्स। तो अब ये तो बहुत ही ज़्यादा वेग सा, बट फॉर्चुनेटली मुझे वो चीज़ याद थी, मैं कुछ ऐसी बुक में पढ़ रहा था, तो वोल्टेयर सेड समथिंग ऑन डॉक्टर्स, मतलब इट इज़ वेरी पेजोरेटिव ऑल्सो। तो ही सेड कि डॉक्टर्स आर पीपल हु ट्रीट डिसीजेज अबाउट विच दे नो लिटिल, buy medicines about which they know less, to treat patients about whom they know nothing. So that was something very pejorative also, but that might have resonated with sir कि हाँ चलो जो चीज़ मैंने पूछी and he knew it। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं। अगेन देयर आर लॉट ऑफ, अच्छा इसमें ऐसा भी नहीं कि एकेडमिक चीज़ मिस होती है। कैंसर्स पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे कि भाई इस तरह से किस तरह के कैंसर चल रहे हैं, और यू गोइंग टू ट्रीट इट, मतलब एक्चुअल में जो मेडिकल इंटरवेंशंस हैं उन चीज़ों पर भी क्वेश्चन यू यूजुअली एक्सपेक्ट कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से पूछेंगे, बट वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें पूछते हैं, तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट थिंग ऑल्सो। इज इट बिकॉज यू हैड मेडिकल साइंसेज इज ऑप्शनल और बिकॉज यू आर अ डॉक्टर? हाँ, मुझे लगता है कि मेडिकल इंटरवेंशंस प्रिसाइजली बिकॉज कि मेडिकल साइंसेज इज एन ऑप्शनल, बिकॉज अगर डॉक्टर से होता तो दे वुड आस्क मी थोड़ी बाकी की चीज़ें। बिकॉज वो जो सारे टीयर याद करना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, it is उस टाइम पे याद नहीं होते थे। it is actually difficult, but then you always have that option कि आप सॉरी बोल सकते हो कि सर आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस मोमेंट, और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग सॉरी रादर देन सेइंग कुछ गलत। हाँ, आप सिंपली सॉरी बोल सकते हो, इट इज वेरी ह्यूमनली, मतलब आप हर कोई समझता है कि आपको हर चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और इतनी प्रेशर वाली सिचुएशन में इफ यू आर एबल टू आंसर ऐसा, तो फिर तो आप मशीन हो, आपको कुछ चेक कराना पड़ेगा। तो इसमें इट्स गुड टू आंसर सॉरी। और क्वेश्चंस आ रहे हैं याद, क्या पूछे गए थे? अब जैसे फर्स्ट ईयर था तो कोविड थोड़ा सा पास में था, तो कोविड का सर ने पूछा कि अगर हम आपको बना देते कोविड में, यू कम फ्रॉम ए मेडिसिन बैकग्राउंड, तो हाउ वुड यू हैव हैंडल्ड कोविड बेटर। तो मैंने बताया कि सर ऐसे स्टेप्स पे हम वर्क कर सकते थे, थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स हम बेटर कर सकते थे। तो सर ने बोला कि डोंट यू थिंक कि हमारे पास और डॉक्टर्स हैं और सिविल सर्वेंट, डॉक्टर टर्न सिविल सर्वेंट्स हैं, वो सब कुछ नहीं कर पाए, आप ही सब कुछ कर लेंगे ऐसा करके। तो सर ने थोड़ा फंसाने की कोशिश करी। तो फिर इन दैट मोमेंट हाउ यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन? मैं बोला कि सर नो डाउट देयर वर डॉक्टर्स, मैं आई एम जस्ट गिविंग माई पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ वुड आई हैव रिएक्टेड टू दैट सिचुएशन, एज सिंपल एज दैट। तो वो था। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छा इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटियरिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यूजुअली एक परसेप्शन ये होता है कि भाई प्राइवेट क्लिनिक्स में प्रॉफिटियरिंग के एलिगेशंस रहते हैं, तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक हॉस्पिटल्स इतनी डिस्पैरिटी है, तो ये चीज़ें हैं। अगेन नीट के इतने लीकेजेस हैं, मुझे आई एम श्योर कि इस बार अब क्वेश्चंस इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। और मतलब इनफैक्ट इट इज़ अ ग्रिम रियलिटी, व्हाई इज इट हैपनिंग हैपनिंग अगेन एंड अगेन। तो इस चीज़ पर वी नीड टू बी रेडी विद आंसर्स। तो ये चीज़ें हैं। तो नीट के लीकेज में अगर आप उस जगह के एसडीएम होते तो क्या करते?
अगेन अब नीट लीकेज में एक एसडीएम का बहुत छोटा परव्यू हो जाएगा. यू नीड टू हैव दैट बर्ड आई व्यू. अगर नीट को आपको बहुत ऐसे, आई एम नॉट एग्जैक्टली इनटू द डिटेल्स ऑफ द एग्जाम कैसे कंडक्ट हो रहा है, बट स्टिल अगर आपको उसको फुल प्रूफ बनाना है तो आई एम श्योर. पहला तो मेरा एक कंसर्न बहुत बड़ा है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो नेचर ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम फॉर बोथ फॉर मतलब मेडिसिन या फिर जेई, इस चीज़ को वी नीड टू रीथिंक इट. क्योंकि ये इतना हाई स्टेक्स एग्जाम है एंड इट इज़ ऑल और नन. कुछ लोगों को मिल जा रहा है जो बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है. तो ये चीज़ को वी नीड टू रीथिंक. अगर हम इसी को चलो एक बार के लिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं कि अगर यही करना है एग्जाम फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, वी नीड टू वर्क अपॉन द लॉजिस्टिक्स. यहाँ पे अगर लीकेजेस हैं तो वी नीड टू प्लग दोज लीकेजेस. और अभी स्टेप मेरे हिसाब से लिया भी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कि वो अब नेक्स्ट ईयर से शायद कंप्यूटर बेस्ड करेंगे. आई होप कि थिंग्स विल टर्न आउट टू बेटर. बट ये एग्जाम का पैटर्न मेरे हिसाब से कुछ रीथिंक करने की जरूरत है, क्योंकि इट इज़ सीरियसली वेरी हाई स्टेक्स. और मतलब वो कोटा का अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेशर पॉइंट इन कोटा इज नॉट बिकॉज ऑफ द लाइफ देयर, it is because of competitive exam का nature. Because you cannot expect someone who is preparing and is told to fight with 25 lakh people and just for 1 lakh seats. तो ये चीज़ को थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा. अगर एक सीरियस सवाल पूछूं, बिल्कुल. आपने बहुत बार देखा होगा दैट यू नो IRS, IPS, IFS ये सारे ये स्कैंडल से पकड़े जाते हैं. कभी आपको इस बात से डिमोटिवेट किया है? It is very unfortunate, to be honest. But फिर again, I would say कि we should not paint the entire service with the same brush. There certainly are some bad apples, but that does not mean that the entire crate is bad. So there would always be people who are doing bad things. Be it in the medical. अब मुझसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था, काफ़ी बार पूछा जाता है मतलब इनफैक्ट कि भाई इस तरह से प्रॉफिटियरिंग वाली चीज़ें हैं. तो आई यूज टू रिस्पॉन्ड इन दिस वे कि नो डाउट दिस इज़ अ रियलिटी, बट ऑल माई लाइफ आई हैव सीन सम फैंटास्टिक डॉक्टर्स हु हैव गॉन बियॉन्ड देयर मैंडेट टू सर्व द पीपल. मतलब in fact it is a reality in people in government setup, the PGs, the consultant all do more than what they are expected to do. So they go beyond their limits. And similar is the case for civil services also. There are fantastic civil servants who have done more than what is expected from them. And they put in all their efforts, put in all their resources very efficiently. They get the things done. So we should not see it from a completely negative angle, but then surely we need to work upon these angles. We need to ensure that such things don't happen. And also a lot of it, because एक पब्लिक सर्विस है ये, तो पब्लिक परसेप्शन ऑल्सो मैटर्स. इस चीज़ को हम नलीफाई नहीं कर सकते कि एक दो लोगों ने किया है तो इट्स ओके. तो पब्लिक परसेप्शन पे वर्क करना ज़रूरी है. एंड प्रेजेंटली पब्लिक परसेप्शन थोड़ा सा है, नो डाउट नेगेटिव है. इसलिए जो सिविल सर्वेंट्स के प्रति भी मतलब एक वो हेटरेट कहीं ना कहीं एक वो रहती है, सिमरिंग हेटरेट है कि बिकॉज ऑफ सच इंसिडेंट्स. अगेन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ इतनी ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं होती, बट नेगेटिव चीज़ इतनी ज़्यादा पब्लिसाइज हो जाती. तो उस चीज़ को कटेल करने की भी मतलब उस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है कि हाउ डू वी कंट्रोल सच सिचुएशंस, कि ये क्यों, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. और स्टेटमेंट के बारे में क्या कहोगे जहाँ पे the ministers do not allow the bureaucrats to actually do good work? Again, this is something that is very loose statement. I don't think that there would be ministers who would outrightly deny a officer the liberty to work. But there are certainly some constraints that are put by the political executive. तो उसमें how it is up to the bureaucrat how they navigate such situation. मतलब we are taught and we are trained for trained to handle such situation. आपको no doubt ऐसी situation मिलेंगी जहाँ पे आपको कहीं से pressure आ रहा है. There are different parties जहाँ पे आपको अगर इसको खुश करें तो ये नाराज़ हो जाएगा, इसको करें तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा. तो how you balance yourself and how you take a principled decision while maintaining cordial relation with all the stakeholders. And while also understanding the concerns of all the stakeholders. So that is something that depends totally on the decision making authority, and this is something that has to be imbibed and cultivated over the time. Between bureaucrat and the minister, who is the end decision making authority? That would depend upon the decision. Then a lot of policy decisions that happens in the secretariat level are, I guess, decided by the ministers. But then a lot of implementation decisions that happens at the district level are decided by the district magistrate and the collectorate. So it is different at different levels. Okay, and both cannot interfere in each other's work. Not legally or not directly, but then surely there is a bureaucrat is there to advise a minister on certain policy, and a minister is there to guide a bureaucrat about what the public expects from them or what are the issues faced by the public. So both have to work in synchrony.
So that is what I feel, and we cannot completely exclude both the wings of the government also, because they have to work in sync. जब आपकी फाइनली थर्ड अटेम्प्ट के बाद व्हेन यू सैट डाउन एंड चेक्ड योर रैंक, तो वो दिन कैसा गुजरा था? मतलब अब वो दिन भी, अब इट इज आयरॉनिकल कि टू ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड हु प्रिपेयर्ड विद मी, इनफैक्ट हु टॉट मी, एंड मैं हमेशा फील करता हूँ कि दे वर मोर कॉम्पिटेंट देन मी, एंड अनफॉर्चुनेटली उन दोनों का ही नहीं हुआ. तो इट वॉज समथिंग दैट मेड मी सैड. बट अगेन जो वो बहुत ओवरवेलमिंग दिन हो जाता है जब आपका रिजल्ट आ जाता है, एंड दैट टू यू गेट फर्स्ट रैंक, तो एकदम से यू गेट फ्लडेड बाई द रिपोर्टर्स, यू गेट फ्लडेड बाई पीपल यू डोंट नो एट ऑल. स्ट्रेंजर्स पूरे आ जाएंगे, हर कोई होता है. तो मतलब एक चीज़ का मुझे वो रिग्रेट रहता है कि आप यू डोंट गेट टू थैंक पीपल हु एक्चुअली मैटर्ड. तो वहाँ पे मतलब मैं अपने परिवार के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाया. आई वॉन्टेड टू थैंक माई पेरेंट्स, और इस तरह से मतलब वो काफ़ी ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है. बट अगेन एक बहुत बड़ा रिलीफ इस चीज़ का होता है कि आई एम फाइनली आउट ऑफ दिस साइकिल, कि आई डोंट हैव टू बी, मतलब इस चीज़ में अब आई एम रॉयल्ड इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली साइकिल, आई एम फाइनली आउट ऑफ इट, एंड वो रिलीफ रहता है. एंड देन इवेंचुअली फिर वही है कि वो चीज़ एक बार पास हो गई तो बहुत दिनों तक वो भी नहीं है कि अगर आप, मतलब इनफैक्ट आई वॉज रीडिंग अभी कुछ रिसेंटली कि साइकोलॉजी में ऐसा प्रूवन है कि मेजर लाइफ इवेंट्स डोंट डिसाइड योर हैप्पीनेस फॉर लॉन्ग. मतलब एक वो स्पाइक मिलेगी बट इवेंचुअली वो बेस लाइन पे आ ही जाती है. तो दैट इज द केस. They have seen that happening for so many years. जब भी एम्स और वो नीट पीजी का रैंक आता था, वो ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं. तो आपका वो डाउनवर्ड स्पाइक कब आया? आई फील कि पीपल एंड योर फ्रेंड्स humble you down. तो वहाँ पे जब एक बार आप आ जाते हो ना, तो यू डोंट, मतलब कोई आपको सेलिब्रिटी की तरह फील नहीं कराता. दे मतलब दैट इज गुड थिंग अबाउट हैविंग फ्रेंड्स कि दे डोंट ट्रीट यू एज समवन डिफरेंट. वो तो अपने जैसे ही ट्रीट करेंगे ना यार. दे हैव सीन मी प्रिपेयर, दे हैव हेल्प्ड मी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. तो वो चीज़ फिर एक बार आपको वो कर देती है नॉर्मलाइज कि हाँ भाई ऐसा कुछ बहुत. और इनफैक्ट it is a very big issue कि we tend to over glamorize our toppers. And in fact not just for toppers, we tend to over glamorize a service or a particular thing. Even for sports also, people who qualify in certain events, who get certain medals, we tend to worship them like gods and forget about others. So this is something that has to be, मतलब इट इज द ओनस इज ऑन पब्लिक, और हम भी उसी का पार्ट हैं. अब मैं भी एकदम वर्शिप करता था क्रिकेटर्स की, मैं एकदम पागल की तरह. वी डोंट सी सच थिंग हैपनिंग इन वेस्ट. तो वो चीज़ को एक थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है. ओवर ग्लोरिफिकेशन, व्हाई इज इट नीडेड? मतलब कोई आईपीएल देख लो, सूर्यवंशी चल रहा है सिर्फ आईपीएल में, बिल्कुल कोई और नाम ही नहीं है. हाँ एग्जैक्टली. तो एक्चुअली आई एम वाचिंग आईपीएल बिकॉज ऑफ सूर्यवंशी. मैं उसकी बैटिंग देखने के लिए मैं आरआर के मैच देखता हूँ. क्या इसके बाद बैटिंग देखनी है मुझे? मैं तो आईपीएल देखना छोड़ दिया जब से एम एस धोनी खेलना बंद हुए तब तक. अगेन फिर वही हीरो वर्शिपिंग है. इट इज डीपली इनग्रेन्ड. तो कब जाना है लवासना? कब से शुरू आपकी ट्रेनिंग? Lavasana, I believe, the foundation course would be starting somewhere in August end. लास्ट क्वेश्चन. अब क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से बात कर रहे हैं, तो एज अ यंग आईएएस पूछूंगा आपसे. लेट्स सपोज यू गेट टू होल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, द हेल्थ सेक्टर फॉर अ डे, तो आप क्या चेंजेस लेकर आओगे हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर? A lot of things can be done. Please and be blunt as possible. तो मतलब सबसे पहले I feel that there is huge disparity between the rural and urban areas, and knowing कि a significant part, in fact 60% of our population live in rural areas, and only 30-35% of our doctors serve in rural areas. And the problem is even grim for if we talk about the hospital beds and the infrastructure. So we need to work upon that. अगर हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म डिराइव करें कि जिसमें द डॉक्टर्स आर इंसेंटिवाइज्ड फॉर सर्विंग इन मतलब रूरल सेटिंग्स, तो एंड इनफैक्ट एक और चीज़ है कि जो कि एक्चुअल में कुछ स्टेट्स प्रैक्टिस भी करते हैं कि अगर उनकी पीजी मार्क्स अगर उसमें काउंट करें कि नंबर ऑफ ईयर सर्व्ड इन रूरल सर्विस, हाँ, तो वो चीज़ भी हेल्प करेगी. इसके अलावा द फीस डिस्पैरिटी बिटवीन द प्राइवेट एंड मेडिकल पब्लिक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, तो दैट हैज़ टू बी लुक्ड ऑन टू. एंड इसका मुझे लगता है कि देयर आर certain constraints on private colleges that they need to have a fully functional hospital before starting a college. तो इसमें we can bring in things like हम टाई अप कर सकते हैं मल्टीपल कॉलेजेस का एक नोडल हॉस्पिटल बना दें. तो इस तरह से उनके कॉस्ट, अगर इनपुट कॉस्ट कम आएगी तो आई एम श्योर कि अगर उस चीज़ पे हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. और डॉक्टर्स के लिए क्या कर सकते हो? डॉक्टर्स के लिए आई थिंक द प्राइमरी aim should be to create an environment that is safe and secure, because I have also felt
चलो एम्स में ऐसी कोई इशू नहीं होती कि हमारे पास इनफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो रहती है, बट अगर कोई रूरल सेटिंग में अगर हम किसी को भेज रहे हैं रूरल सेटिंग में, तो वी नीड टू एंश्योर देयर सेफ्टी। तो इस चीज़ पर काफ़ी फोकस करने की जरूरत है। वर्क लाइफ बैलेंस फॉर अ डॉक्टर, स्पेशली फॉर ए पीजी, इज अ फॉरगॉटन कंसेप्ट। तो इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा हमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो मतलब वी कैन नॉट एक्सपेक्ट समवन टू वर्क लाइक ए हॉर्स। मतलब हाउ कैन वी से दैट कि हाँ भाई 36 घंटे की ड्यूटी है, आपको ही करना करना पड़ेगा। तो दिस हैज़ टू बी चेंज्ड। तो इन चीज़ों पे वर्क करना है हमें। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो वी कैन गिव मतलब अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शंस टू डॉक्टर, कि अब नॉट नेसेसरली अगर किसी ने एमबीबीएस कर लिया तो उसे कोई मतलब एक वो जो टिपिकल हम डॉक्टर्स सोचते हैं कि वो क्लिनिक में जाएगा, पेशेंट्स देखेगा, डॉक्टर कैन डू वंडरफुल थिंग्स इन अदर अल्टरनेटिव फील्ड्स। अब वेस्ट में अगर हम कंपेयर करें तो डॉक्टर्स आर इनटू मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स आर इनटू पॉलिटिक्स, डॉक्टर आर इनटू पॉलिसी मेकिंग। तो इन सब चीज़ों को भी हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि नॉट नेसेसरली एक सिंगल करियर ऑप्शन। आप अगर किसी ने 11th-12th में एक डिसीजन लिया है कि मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, मैं मेडिसिन में लेके एमबीबीएस कर रहा हूँ, उसके बाद अगर उसका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में है, आर्ट में है, स्पोर्ट्स में है, तो इन सब चीज़ों को हमें कर्टेल नहीं करना चाहिए। इन सब की भी परफेक्ट अवेन्यूज़ होने चाहिए, ताकि अगर वो उसकी पर्सनैलिटी कहीं ज़्यादा बेटर रेजोनेट करती है तो वहाँ एक्सप्रेस कर सके वो। तो इन चीज़ों पे भी सोच सकते हैं। आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई नो अभी आप कुछ नहीं कर सकते, बट आई एम ग्लैड दैट समवन फ्रॉम आवर साइड इज गोइंग इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन विद दीज काइंड ऑफ थॉट्स। तो आज नहीं तो 10 साल बाद कोई वहाँ पे होगा जो डॉक्टर्स के लिए ये ऐसी चीज़ें लेकर आएगा। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच एंड आई होप आई वुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। एब्सोल्युटली। बट हमारा भी खत्म नहीं हुआ है। आई डू हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस फ्रॉम यू। श्योर। ऑलराइट, सो very simple 2 rules. You have to be super spontaneous and super truthful. Okay. A trend you think should end immediately. Over glorification of toppers or services or anything. One song that got you through the second attempt. रुक जाना नहीं। The career risk you're proud of. The career switch. Your most controversial opinion about Indian education. Again, the entrance examination has to be rethinked. If you could swap lives with someone for a day, who would it be? And this is very interesting. I want to swap with a lot of people. But the first name that comes to my mind is our National Security Advisor, Mr. Ajay Dogan. Well, sir, na? Yeah. One thing you always carry with you. Apart from mobile, I would say my smile. You have a very nice smile, by the way. Thank you so much. Best advice you have ever received? That time is the best healer. It heals everything. And therefore do believe that this too shall pass. First thing you bought after getting All India Rank 1? I haven't bought anything great. I think that I have a list prepared. I would be buying something before getting into my क्या academy. लेना सबसे पहले? I need to buy some gadgets. मतलब लैपटॉप वगैरह लेना है, ये सब चीज़ें। सरकार देगी ये तो। नहीं, अभी खुद लेना पड़ेगा। Hustle or balance? Hustle. Country you want to explore most? I do have a lot of unexplored areas in our own country. I do want to explore India. And apart from it, my parents have this thing कि they want to visit Japan someday. So I hope I Yeah, I've heard it's beautiful. Yeah. पूरा इंडिया जापान ही जा रहा है। Yeah. Your biggest fear right now? Not exactly sure. इतना ऐसा कभी इतना अब ऐसे तो मतलब fear तो बचा ही नहीं ना। यार वो दुनिया डरेगी। नहीं, not in that terms, but हाँ ऐसा कुछ सोचा नहीं। नाम क्या IAS लग रहा है, दुनिया डरेगी। One habit that completely changed your life? Talking to myself. I feel कि self introspection, self analysis has helped me a lot. Your definition of success? Being able to sleep with a clear conscience. No, that's great. Yeah. Now I think you are going into the most difficult part of your life. Right. That you need to have great integrity, and I sincerely hope you do have that. Right. And you actually change our country to a much, much better tomorrow. Thank you so much, and thank you so much for having me. It was a great conversation. I felt really nice being able to express, and specifically for something I wasn't asked questions on my medical background and hitherto, but I felt very great being able to express about my alma mater, because I sincerely feel that a lot of a great chunk of my success I owe it to my alma mater, my friends, my seniors, juniors there, and all of it. So thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much, Dr. Anuj. You have really inspired our young aspirants, and I sincerely hope that they follow your path to IAS, UPSC, IRS, and together we can actually change our country to a better tomorrow. Thank you so much.
And thank you so much, guys, for watching today's show. That's AIR Rank 1 Dr. Anush telling you the insights of his preparation, his mindset, how he actually cracked the UPSC exam. And yes, it ain't easy. Hustle is the real answer. And if you have that, only then you can crack it. Thank you so much. And as always, do not forget to like, share, and subscribe. Thank you, and God bless you.